Hello everyone. Today we will discuss about one of the deadliest and most devastating disease mankind has ever seen, and that is plague. So first we will start with the definition of plague. Plague is an acute infectious disease which is caused by Yersinia pestis and clinically characterized by fever, lymph node, respiratory infection, blackened skin at the extremities. So plague is a communicable disease which can transmitted by fleas to human, or it can be transmitted from human to human, and it is mainly caused by Yersinia pestis bacteria, clinically characterized by lymph enlargement of lymph node, mainly in groin or axilla region, then blackened skin at the extremities, and lung infection. The sign and symptoms of the plague is depend on the types of plague that we will discuss afterwards. So it was all about the definition of plague. Next, we will see history of plague. Plague has caused three major world pandemic. The first major pandemic was Justinian plague in the year 541 AD. It spread from Central Africa and killed about 50 million people worldwide. Second pandemic was Black Death in mid 1300, and it killed 25 million in Europe and 25 million people in Asia and Africa. So during the second pandemic, total 50 million people lost their life. Third pandemic began in late 1800 and did not end until 1959. And during third pandemic, it killed 15 million people across China, Hong Kong, India, Australia, and America. So it was all about the history of plague. Next, we will see epidemiological factor. Uh, the interaction of agent factor, host factor, and environmental factor can cause disease. So in epidemiological factor or epidemiological determinants, we will discuss about agent factor, host factor, and environment factor. First, we will see agent factor. Yersinia pestis bacteria, that is gram-negative bacteria, is main reason or mainly responsible for plague disease, and wild rodent are the natural reservoir of the plague. The source of infection, there are three sources of infection. First one is infected rodent, then fleas, then cases of pneumonic plague. So there are three main source of infection for plague disease. So it was all about the agent factor. Next, we will see host factor. Plague can affect all the individual irrespective of age and sex. So all ages and both sexes are the susceptible for this disease. And the outdoor activities like hunting, grazing, cultivation, harvesting, in construction, और ये जो एक्टिविटीज होती है और इन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके अंदर जनरली हाई रिस्क होती है इस डिजीज के ट्रांसमिशन की. सो इट वाज ऑल अबाउट द होस्ट फैक्टर. नेक्स्ट वी विल सी एनवायरमेंटल फैक्टर. Plague disease start from September and it end till May. और जो प्लेग डिजीज के लिए जो फेवरेबल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड and humidity more than 60%. इस टेम्परेचर और इस ह्यूमिडिटी के अंदर जो ये क्लाइमेट रहता है, इस टाइप का जो क्लाइमेट होता है, वो जो रेड फ्लीज जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेग ट्रांसमिशन के लिए, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है.
अगर टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होने लगे या फिर हॉट क्लाइमेट हो और जो ह्यूमिडिटी है वो लेस देन 50 होती है, तो इस क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, जो फ्लीज का जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, उसके अंदर जो इमेच्योर जो फ्लीज होती हैं वो इस क्लाइमेट के अंदर अच्छे से उसको कोऑप नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो इंटरप्ट होता है। इसीलिए जो मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 50% ह्यूमिडिटी का जो क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट के अंदर जो फ्लीज होती है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली अपीयर इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादातर ऐसे एरिया जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, ओवर क्राउडिंग प्लेसेस है वहाँ पे, और जहाँ पे रोडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसे एरियाज के अंदर भी प्लेग ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट वी विल सी ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। Plague is transmitted by the following ways: vector-borne, direct contact, fecal-oral transmission, droplet infection, or by indirect contact. So it can be transmitted by flea bite, and for direct contact with the infected animal or infected human or with infected rodent, it can be directly transmitted to human being. और जब हिस्ट्री हो, फीकल ओरल रूट से इस तरीके से फैल सकता है जब किसी ह्यूमन बीइंग की इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल या फिर उसका कोई इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड को उसने जब खाया हो या फिर कंटामिनेटेड वाटर को जब ड्रिंक किया हो, तो इस वजह से भी जो प्लेग डिजीज है वो प्लेग डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। देन इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट फ्रॉम एनिमल और फ्रॉम ह्यूमन। मेनली जो न्यूमोनिक प्लेग होता है, उस न्यूमोनिक प्लेग के अंदर ह्यूमन टू ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिशन के chances रहते हैं, and that is because of droplet infection. So it was all about the mode of disease transmission. Next is transmission cycle. जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, जो प्लेग डिजीज है इट स्टार्ट फ्रॉम द रेट, और जो रेट जो होते हैं, जो रोडेंट होते हैं, वो नेचुरल रिजर्वर होते हैं इस डिजीज के लिए। जब फ्लीज इस रेट को जब बाइट करती है तो उस टाइम पे वो अपने फूड के लिए जो रेट का ब्लड होता है उसको सक करती है। तो उस टाइम पे जो रेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस फ्लीज तक आते हैं, और इस जो फ्लीज होती है उसके एब्डोमेन के अंदर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जब ये फ्ली ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, ड्यूरिंग द बाइट वो जो बैक्टीरिया होता है वो उस टिश्यू या फिर उस टिश्यू तक वो छोड़ देती है, एंड आफ्टरवर्ड्स इट कॉज अ प्लेग डिजीज। इस तरीके से जो प्लेग डिजीज होता है उसका डिजीज ट्रांसमिशन रेट से और ह्यूमन बीइंग तक होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द disease transmission of plague. Next, we will see types of plague. There are mainly three types of plague: the bubonic plague, pneumonic plague, and septicemic plague. जो most commonly जो plague होता है वो होता है bubonic plague. Bubonic plague क्या होता है? It is the acute inflammation and painful swelling of the lymph node, mainly in groin or axilla. और ये किस तरीके से होता है? तो इट विल अकर व्हेन इन्फेक्टेड रोडेंट और इन्फेक्टेड फ्ली बाइट टू ह्यूमन, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो इट स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स एंड रीचेस टू लिम्फ नोड्स, ठीक है। और उसकी वजह से जो लिम्फ नोड होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इट स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से जो लिम्फ नोड होते हैं उनका एक्सपांसन होने लगता है। इस तरीके से जो लिम्फ नोड होते हैं उनका
लार्ज इनलार्जमेंट होता है ब्यूबेनिक प्लेग के अंदर। और जो ब्यूबेनिक प्लेग के बाद में जो इन्फेक्शन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाए तो इट कैन कॉज निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग इज जनरली कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, कफिंग एंड स्नीजिंग। और जो ब्यूबेनिक प्लेग और निमोनिक प्लेग को ट्रीट नहीं किया जाए तो इट कैन कोज सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग में क्या होता है, व्हेन द बैक्टीरिया enters the blood stream directly and multiply there, then it is known as septicemic plague. So it was all about the types of plagues. Next we will see the sign and symptoms. The sign and symptoms of bubonic plagues are fever, headache, chills, body ache. The main sign and symptoms of bubonic plague is enlargement of lymph node in groin or axilla area. In pneumonic plague, mainly the problems related to the respiratory system, and that are coughing, then breathing difficulty, then sneezing. ठीक है, ये सारे symptoms pneumonic plague के अंदर रहते हैं। In septicemic plague के अंदर fevers, chills, body ache, severe abdominal pain, then bleeding from nose, bleeding from rectum, then bleeding from mouth, ये साइन एंड सिम्टम्स सेप्टिसेमिक प्लेग के अंदर स्टार्ट होते हैं। इन सिम्टम्स की वजह से ब्लीडिंग, ठीक है, फ्रॉम नोज, फ्रॉम रेक्टम एंड फ्रॉम माउथ, देन आफ्टर दैट ड्यू टू द डायरिया, ठीक है। और इन सिम्टम्स की वजह से क्या होता है, पेशेंट्स विल बी हैविंग हाइपोटेंशन, ठीक है, एंड हाइपोटेंशन के बाद में इट कैन लीड टू हाइपोवोलेमिया, देन इट फर्दर इट कैन लीड टू शॉक। जो इस सेप्टिसेमिक प्लेग के जो स्टैंडर्ड साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिस वजह से इस सेप्टिसेमिक प्लेग को जाना जाता है वो होते हैं ब्लैकेंड स्किन ऑफ फिंगर्स, टोज एंड नोज, ठीक है। और उसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि ड्यू टू द inadequate supply of blood, it can cause cyanosis, and cyanosis further it can lead to necrosis, and afterwards it can lead gangrene, ठीक है। और उसकी वजह से जो ब्लैकेंड स्किन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं। So it was all about the sign and symptoms of bubonic, pneumonic or septicemic plague. Next we will see the diagnosis criteria for plague. So first we do a physical examination and history taking. और history taking के अंदर generally we find out the possible exposure, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है पॉसिबल एक्सपोजर की, फॉर एग्जांपल उसे कोई फ्ली बाइट्स से रिलेटेड हिस्ट्री है, या फिर किसी रोडेंट बाइट से रिलेटेड हिस्ट्री है, या फिर उसका एक्सपोजर किसी इन्फेक्टेड या सिक किसी रोडेंट के साथ में हुआ हो, तो ये हिस्ट्री हम फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट we take blood sample mainly for the detection of antibodies, and culture sample from the body fluid, and that is for to check for the bacteria Yersinia pestis। इसके लिए हम यहाँ पे कल्चर टेस्ट करते हैं, और देन प्लूरल फ्लूइड जो है उसका हम कल्चर चेक करते हैं टू फाइंड आउट द pneumonic plague. So it was all about the diagnosis for the plague disease. So next is prevention and control of plague disease. Okay. So plague disease can be prevented by the following measures, and that are first one is control of cases, then control of fleas, then control of rodent, and then vaccination, ठीक है। और इन चार प्रिवेंटिव मेजर्स की हेल्प से हम जो प्लेग डिजीज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल ऑफ केसेस। For the control of cases,
वी हैव टू यूज द फॉलोइंग मेजर्स, जिसमें आप अर्ली डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन। ये 5 जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो काफ़ी ज़रूरी मेजर्स हैं किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे ही कोई आउटब्रेक आता है या प्लेग के केसेस मिलने लगते हैं, तो उसी दौरान हमको क्या करना होता है, वी हैव टू डायग्नोज द केसेस ऑफ प्लेग। ठीक है, आफ्टर द डायग्नोसिस वी हैव टू गिव द नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज टू द इंटरनेशनल अथॉरिटीज। ठीक है, और वो इसलिए जरूरी है, अगर हमने उस नोटिफिकेशन को, डिजीज नोटिफिकेशन को, अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ या इंटरनेशनल अथॉरिटी को हमने नहीं दिया, तो क्या होता है कि जो डिजीज का ट्रांसमिशन है वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाने के, एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर में जाने के चांसेस रहते हैं, फर्दर इट कैन बिकम पैंडेमिक। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अपने जो इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो अपनी एडवाइजरी है, गाइडलाइन है, वो अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कर लें, ताकि उस डिजीज का किसी एक एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाना नामुमकिन हो जाए। ठीक है, तो मेनली जो नोटिफिकेशन होता है वो इसीलिए जरूरी होता है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आफ्टर द गेटिंग द डायग्नोसिस, जो डायग्नोस केसेस हैं उन केसेस को हम क्वारंटाइन करते हैं, उनका आइसोलेशन करते हैं, ताकि वो डिजीज किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में उस डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो। तो इसके लिए से एक आइसोलेशन एक इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स है। आफ्टर द आइसोलेशन, जिन लोगों के अंदर ये डिजीज फाइंड आउट हुई है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट एडवाइजरी, और उसके लिए जनरली जो ट्रीटमेंट है प्लेग के लिए वो एंटीबायोटिक्स हैं, जिनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, जेंटामाइसिन एक्सेट्रा। ये सारी जो मेडिकेशन है, इट इज यूज मेनली टू प्रिवेंट, मेनली टू कंट्रोल एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग। एंड आफ्टर द डिसइंफेक्शन, जिस एरिया के अंदर जो प्लेग के केसेस मिले हैं उस एरिया को कम्प्लीटली, उस एरिया का डिसइंफेक्शन करना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट ये जो मैंने आपके साथ अभी फिलहाल डिस्कस किया, अर्ली डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जनरली इन सबका हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द केसेस। Next important preventive measure is control of fleas. In this, what we do, we break the chain of transmission is destruction of red fleas by insecticide. और इंसेक्टिसाइड्स के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं वो होते हैं DDT 10% एंड BSC 3%। ऐसे एरिया जहाँ पे DDT और या तो DDT रेसिस्टेंस हो या फिर BSC रेसिस्टेंस हो, ऐसे एरिया के अंदर हम यूज करते हैं कार्बिल 2% का और मैलाथियोन 5% का, और विद द हेल्प ऑफ दिस इंसेक्टिसाइड्स हम फ्लीज को कंट्रोल करते हैं। देन आफ्टर दैट कंट्रोल ऑफ rodent. In control of rodent, we use insecticide throughout the house in an endemic area. Then avoid contact with the dead rodent or sick cats. After that, we set the traps if mice or rat are present around the house. ठीक है, then we so ये जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनका हम यूज करते हैं ताकि जो रोडेंट है उन रोडेंट को हम कंट्रोल कर सकें। आफ्टर दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर इज वैक्सीनेशन। ठीक है, फॉर द इफेक्टिव वैक्सीनेशन, vaccination should be carried out at least a week before and anticipated. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो प्लेग डिजीज है उसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेग डिजीज। सो टुडे वी डिस्कस definition of plague, then history of plague, then epidemiological determinant, after the disease transmission, then types of plague, then sign and symptoms, diagnosis criteria, then prevention, treatment for the plague. Thank you so much.